Welcome, friends, to the Merchant of Venice recording, Act 1, Scene 1, Part 5. Exit Greciano and Lorenzo. Antonio says, is that anything now? Is that anything now? That means, was there any sense in what Greciano spoke? What did Greciano speak? Greciano spoke about how he would play a comical role. Greciano spoke about what a young man should not do, and the advice that he gave, that Antonio should not think too much about social concern. So Antonio says, was there any sense in what Greciano spoke now? Bassanio says Greciano speaks an infinite deal of nothing. Infinite deal means unlimited. Nothing means nonsense. So Greciano speaks unlimited nonsense or lot of idle talks. More than any man in all Venice. No other man in Venice can speak as nonsense or is not indulged in as much of idle talk as Greciano is. His reasons are, means sense in his talks. How much sense is there in Greciano's speeches, talks? 2 grains of wheat in 2 bushels of chaff. Bushels means bags, chaff means husk या भूसा. 2 बोरा भूसा का, उसमें 2 दाना गेहूं का. तुमको 2 दाना गेहूं का खोजने के लिए 2 बोरे भूसे में अगर तुम 2 दाना गेहूं का खोजोगे तो सारा दिन लग जाएगा. यू शैल सीक ऑल डे. तो अगर 2 दाना गेहूं का 2 बोरे भूसे में अगर छुपा हो तो उसको खोजने के लिए सारा दिन लग जाएगा. तो बताओ यहाँ पे 2 grains ऑफ व्हीट क्या है? लिटिल सेंस इन ग्रेशियानोज टॉक्स. तो 2 grains ऑफ व्हीट क्या है? लिटिल सेंस इन ग्रेशियानोज टॉक्स. एंड 2 bags ऑफ शैफ क्या है? 2 bags ऑफ शैफ हो गया इनफाइनाइट डील ऑफ नॉनसेंस. 2 bags ऑफ शैफ क्या हो गया? इनफाइनाइट डील ऑफ नॉनसेंस. यू शैल सीक ऑल डे. यू विल हैव टू सर्च ऑल डे or before you find them, before you find the wheat. That means in order to find little sense in Greciano's talks, you have to listen to his infinite deal of nothing. तो उसके इतने सारे बकवास में थोड़ा सा सेंस होता है, तो इसीलिए उस थोड़े से सेंस के लिए इतना बकवास सुनने का कोई वैल्यू नहीं है. जिस तरह की 2 बोरे भूसे में 2 गेहूं का दाना खोजना बेवकूफ़ी है. तुम इतना मेहनत करोगे और खाली 2 दाना गेहूं का मिलेगा. इसीलिए इसी तरह से ग्रेशियानो के इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग, जो कि बसल्स ऑफ शैफ के जैसा था, उसमें सेंस है खाली 2 grains ऑफ व्हीट जैसा. तो इट इज़ नॉट वर्थ द सर्च. यू विल हैव टू सर्च ऑल डे in the 2 bushels of chaff before you find 2 grains of wheat or little sense in what Greciano speaks. And when you have them, when you find them, they are not worth the search. You will realize that the amount of time you had spent is not worth the trouble, is not worth the result, and result is 2 grains of wheat. So he says that because you have to spend entire day for such insignificant quantity of sense, for such insignificant amount of wheat, so that would be an entire waste of time. Antonio says, well, tell me now, what lady is the same? Tell me about the lady that you had promised to tell me about, to whom you swore a secret pilgrimage. Pilgrimage is a holy visit, a visit to a holy place. It is a sacred visit, but यहाँ पे it is a secret visit. So tell me, you were about to tell me, you were going to tell me about a lady to whom you have decided to pay a secret visit, that you today promised to tell me of. You had promised to tell me of. Now here we come to know about Antonio's sadness. So Antonio he was not sad, he was preoccupied with the secret visit that Bassanio was going to discuss. If a friend tells you that he would reveal something very special, you would be preoccupied. मतलब वो बात तुम्हारे दिमाग में घर करके रहेगा till you come to know about it. So I don't think that Antonio was sad. I would rather say that Antonio was preoccupied about Bassanio's secret visit, and therefore he was ignoring everyone else, Salerio, Salarino, Greciano, Lorenzo, as he was very eager to know what Bassanio was going to say. And I will give you one more evidence as we move ahead. Bassanio says, it is not unknown to you, means not unknown, not और un cross हो जाएगा, इसका मतलब it is known to you, मतलब you are aware, Antonio, how much I have disabled mine estate,
हाउ मच आई हैव डिजेबल्ड मीन्स वेस्टेड, डिमिनिश्ड, एस्टेट मतलब वेल्थ. Bassanio says, you are aware, Antonio, how I have wasted my wealth by something showing, by a show off, by a showy lifestyle, by a lavish lifestyle. Lavish मतलब क्या? बहुत ज़्यादा खर्च करना, बहुत ज़्यादा रईसी से जीने को lavish lifestyle बोलते हैं. Showing का मतलब हो गया maintaining. So how had Bassanio wasted his wealth? Bassanio had wasted his wealth by maintaining a very lavish lifestyle. Than my faint means. Now my resources are limited. My resources have become limited. They are modest. Would grant continuance. So now my resources does not allow me. Would grant means does not allow me to continue in the same way. मतलब I cannot continue to live in a lavish lifestyle anymore because I have limited means now. So my means do not permit me to continue living in that lavish lifestyle which I used to do. Nor do I now make moan. Now I have not come here to complain. What? To be abridged. That I have been curtailed. That I have been restrained from living such a lavish lifestyle. I cannot live such a lavish lifestyle anymore. I am not here to complain about it. Okay? From such a noble rate, from leading such a lavish lifestyle. I am not here to complain about it. But my chief care, but my prime concern is to come fairly off. Come fairly off means to repay honorably. Now my prime concern is to repay honorably from the great debts. Come fairly off from, इसका मतलब repay honorably. From the great debts, from debts मतलब उधार, the money that somebody has borrowed. So now what was Bassanio's prime concern? Bassanio's prime concern was how to repay honorably all the debt that he had taken. So he says that my concern is not how I would live a lavish lifestyle. I have given that up. I have been restricted. I have been restrained from leading such a lavish lifestyle. So now my prime concern is how to clear all the debts wherein, in which my time, my reckless lifestyle, reckless मतलब बिना सोचे समझे करने को reckless बोलते हैं, where my reckless lifestyle, something too prodigal, extravagant lifestyle, extravagant मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करना, खर्चेलू, so extravagant lifestyle, in which I have been trapped. In what I have been trapped? I have been trapped in great debts. How have I been trapped in great debts? Reckless living, extravagant lifestyle has left me trapped in great debts. Has left me gauged. Gauged matlab engaged, trapped. Has left me engaged. What has left me trapped? My extravagant lifestyle has left me trapped. In what has it left me trapped? It has left me trapped in great debts. So रईसी वाले ज़िंदगी के कारण हम बहुत ज़्यादा उधार में फंस चुके हैं. टू यू अंटोनियो, तुम्हारे तरफ अंटोनियो, तुमसे ही हम सबसे ज़्यादा पैसा उधार लिए. आई ओ द मोस्ट. ओ मतलब आई एम बाउंड, आई एम ओब्लाइज्ड. कुछ करने को हम एकदम बाउंड है. आई एम ओब्लाइज्ड टू पे. आई हैव टेकन मोस्ट ऑफ द मनी. आई एम ओब्लाइज्ड टू पे मोस्ट इन मनी एज वेल एज इन लव एंड कंसर्न. कौन सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर दया दिखाया है पैसे को लेके और प्यार को लेके? आई एम मोस्ट बाउंड टू यू अंटोनियो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लव. And from your love, out of your friendly concern, because you care for me, because you show your concern as a friend, out of your love I have a warranty, I have an assurance, मेरे को विश्वास है, to unburden all my plots and purposes, to disclose, to reveal all my plans and intentions. तो तुम इतना प्यार करते हो मेरे को, इतना कंसर्न दिखाते हो कि हम तुमको रिवील कर सकते हैं मेरे दिमाग में क्या प्लान है, मेरे दिमाग में क्या इंटेंशन है, किस चीज़ के लिए प्लॉट्स और पर्पसेस बना रहा है. हाउ टू क्लियर ऑल द डेट्स, हाउ टू रिपे ऑल द डेट्स दैट आई ओ, दैट आई एम बाउंड टू पे. सो ये इसके दिमाग में क्या प्लान है? हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स दैट आई ओ. तो ये बोल रहे हैं क्या कि मेरे दिमाग में प्लान है किस तरह से हम इस डेट को क्लियर कर सकते हैं. वही मेरा प्राइम कंसर्न है, किस तरह से हम डेट को क्लियर करें पे. ओके, और हम ये प्लान तुमसे ही रिवील कर सकते हैं. तो चलो यहाँ पे एक वर्ड था प्रोडिगल, इस वर्ड पे आते हैं. ये प्रोडिगल वर्ड जो है तुम लोग गूगल में सर्च करना, प्रोडिगल सन्स. प्रोडिगल सन एक बिब्लिकल रेफरेंस है. बिब्लिकल मतलब बाइबल से स्टोरी लिया हुआ, तो एक बिब्लिकल रेफरेंस है प्रोडिगल सन्स का. प्रोडिगल सन्स कौन थे? एक किसान के दो बेटे थे.
उनमें से एक लड़के को, एक बेटे को उसके दोस्त लोग प्रोवोक कर दिए, भड़का दिए कि सिटी का लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है। तो वो अपने फादर से झगड़ा किया कि मेरे हिस्से का संपत्ति मेरे को दे दो। तो उसके फादर उसको उसके हिस्से का संपत्ति दे दिए और उसके बाद वो उस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी को बेच के सारा पैसा लेके वो शहर की तरफ चला गया। और शहर में क्या हुआ, उसको इमोरल विमेन एंड डिसलॉयल फ्रेंड्स उसके पैसे को वेस्ट करने में मदद किए, गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, इसके कारण उसका पूरा पैसा बर्बाद हो गया। और जब उसका पूरा पैसा बर्बाद हो गया तो उसके दोस्त लोग सब उसको अबैंडन कर दिए, छोड़ दिए। तो फिर वो घर का बुद्धू जो है वो घर में लौट के आया। सो वो वापस अपने फादर के पास आया, बट उसके फादर उसको अपना लिए। तो ये उसी से वर्ड आता है प्रोडिगल, प्रोडिगल सन्स, जो कि बिब्लिकल रेफरेंस है, उसी से वर्ड आता है प्रोडिगल। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है उसको प्रोडिगल बोला जाता है। Antonio says, I pray you, Bassanio, I request you, Bassanio, let me know it, let me know your plans. And if it stand, मतलब if your plans are as honorable as you yourself still do within the eye of honor, मतलब as honorable as you are, अगर तुम्हारा प्लान तुम्हारी तरह ऑनरेबल हुआ तो हम तुम्हारा मदद करेंगे। सो टेल मी गुड बसानियो, लेट मी नो योर प्लान्स, एंड इफ योर प्लान्स आर एज ऑनरेबल एज यू आर, बी अश्योर्ड, आई गिव यू एन अश्योरेंस दैट माई पर्स, हम तुमको अपने वेल्थ से मदद करेंगे, माई पर्सन, हम खुद अपने आप से, मेरे से जो हो सकेगा वो करेंगे, एंड ऑल माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स ऑल माई रिसोर्सेज, दे ऑल लाई अनलॉक्ड, दे आर एट योर डिस्पोजल, एट योर डिस्पोजल मतलब फॉर यू टू यूज, दे आर ऑल एट योर डिस्पोजल टू योर ओकेशंस टू सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट्स। तो अंटोनियो बोलता है, बसानियो तुम सिर्फ मेरे को ये बताओ कि तुम्हारा इंटेंशंस क्या है, तुम्हारा प्लान्स क्या है, और अगर तुम्हारा इंटेंशंस, तुम्हारा प्लान्स जो है वो तुम्हारी तरह ऑनरेबल हुआ तो मेरा अश्योरेंस है कि हम तुमको वेल्थ से, माई पर्सन से, ऑल माई रिसोर्सेज, दे आर ऑल एट योर डिस्पोजल एंड दे आर देयर फॉर टू सेटिस्फाई योर रिक्वायरमेंट्स। Bassanio replies, in my school days, when I was in school, when I was a child, when I had lost, when I would lose one shaft, one arrow, village boys and in ancient times children used to play with bow and arrows. So school days में जब भी मेरा कोई एक एरो खो जाता, आई शॉट हिज फेलो ऑफ द सेम फ्लाइट, हिज फेलो मतलब अनदर एरो। एक हम लोग क्रिकेट में, हम लोग जब छोटे थे तो मैदान के आसपास बहुत सारा बुशेस होता था, तो जब बॉल बुश में खो जाता था, हम लोग क्या करते थे, उसी तरफ एक पत्थर मारते थे और उस पत्थर को फॉलो करते थे कहाँ गया, और वो पत्थर को फॉलो करते करते कई बार ये होता था कि बुश में जो छुपा हुआ बॉल है वो मिल जाता था। उसी एग्जाम्पल को ये भी बता रहा है that whenever he would lose one arrow, he would shoot another arrow of the self same flight. Flight मतलब trajectory, ये होता है trajectory, मतलब same force और same trajectory। ओके, जैसे पहला एरो मारा, तीर चलाया था, वैसे ही दूसरा तीर भी वो चलाता था। इन द सेम सेल्फ सेम ट्रैजेक्टरी, इन द सेल्फ सेम वे, विद द सेम फोर्स, विद द एरो विद द सेम वेट एक्सेट्रा। उसी की तरह पहले एरो को रेप्लिकेट करता था पूरा का पूरा, बट विथ मोर एडवाइस्ड वॉच। बट पहला एरो और दूसरे एरो में क्या डिफरेंस था, पहला एरो रेकलेसली खोया और दूसरा एरो जो था उसको वो केयरफुली ऑब्जर्व करता था। दूसरे एरो को क्या करता था, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से शूट करता था टू फाइंड द अदर फोर्थ, और दूसरे एरो को केयरफुल ऑब्जर्वेशन से जब वो फॉलो करता था तो उसको फॉलो करते करते हो सकता था कि वो दूसरा एरो वहीं जाके गिरे जहाँ पे पहला एरो गिरा था। तो इस तरह से ही वुड ऑलवेज ऑफन फाइंड द अदर फोर्थ, फाइंड द अदर, दैट इज द फर्स्ट एरो। एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ, बाई रिस्किंग बोथ द एरोज, आई ऑफन फाउंड बोथ द एरोज। इस तरह से दोनों एरोज को रिस्क करने पे कई बार ऐसा होता था कि हम दोनों एरोज को खोज भी पाते थे। I urge this childhood proof. I am emphasizing, I am stating this childhood example
because what follows is pure innocence, because my intentions are pure, I am innocent, I do not have any evil intention, my intentions are honorable, what I am about to say is honorable. ये बत क्यों बोला what follows is pure innocence? Because इसके पहले अंटोनियो बोला था that only if your motives are honorable like you and I am ready to help you with all my resources. तो सिंस अंटोनियो बोला था कि if your intentions are honorable, इसी तरह से ये भी बोल रहा है कि my intentions are honorable. जिस तरह से चाइल्डहुड एक इनोसेंस से टेंटेड रहता है, इनोसेंस से पेंटेड रहता है, उसी तरह से मेरा इंटेंशन भी इनोसेंट है, ठीक है, ऑनरेबल है. आई ओ यू मच, तो ये क्या बोल रहा है? आई ओ यू मच मतलब आई एम बाउंड टू पे यू इनफ मनी. एंड लाइक अ विलफुल यूथ आई एम लाइक अ रेकलेस मैन. एक रेकलेस मैन क्या, यंग मैन क्या होता है? अपना सब कुछ गवा देता है. एक रेकलेस यंग मैन, रेकलेस मतलब जो बिना सोचे समझे अपना ज़िंदगी बिताता है, वो क्या करता है? वो अपना सब कुछ गवा बैठता है. तो जस्ट लाइक अ विलफुल यंग मैन, जस्ट लाइक अ रेकलेस यंग मैन, दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, ऑल दैट आई बोरोड हैज़ बीन स्क्वैंडर्ड. स्क्वैंडर्ड इज़ अ वेरी गुड वर्ड. हैज़ बीन स्क्वैंडर्ड, हैज़ बीन वेस्टेड. सो जो भी हम बोरो किए थे पैसा, ऑल दैट आई हैड ओड इज लॉस्ट. आई हैव वेस्टेड ऑल द मनी दैट आई हैड बोरोड. बट इफ यू प्लीज टू शूट अनदर एरो, दैट मीन्स दूसरा एरो जब शूट करते हैं तो पहला एरो मिल जाता है. यहाँ पे बोलना चाह रहा है अनदर एरो इज अ मेटाफर. मेटाफर मतलब रेफरेंस टू प्रोवाइडिंग हिम फर्दर मनी. लेंड मी मोर मनी, सो वुड यू प्लीज लेंड मी मोर मनी. सो जो पहला एरो, तुम जो पहले लोन दिए थे, दैट वॉज लाइक द फर्स्ट एरो. तुम अभी जो मेरे को लोन दोगे, दैट वुड बी लाइक द सेकेंड एरो. प्रोवाइड मी फर्दर लोन. तो इफ यू आर विलिंग टू शूट अनदर एरो, इफ यू आर विलिंग टू प्रोवाइड मी फर्दर लोन, डेट और मनी, दैट सेल्फ सेम वे, इन द सेम वे विच यू डिड शूट द फर्स्ट, लाइक यू हैड पेड मी अर्लियर डेट, इफ यू आर विलिंग टू पे मी द मनी अगेन, विच वुड बी लाइक द सेकेंड एरो, which you did shoot the first, like the earlier debt you have paid, if you are ready to provide me further loan, I do not doubt, matlab I am sure, as I will watch the aim, this time I will be more careful, I will be more observant how I use your money, or to find both. So I am very sure that I will find both, matlab I will be able to return not only the current loan that I am taking, but also the earlier loan that I have taken, or bring your latter hazard back. But if I am not able to pay both the amounts, I am certain that latter मतलब recent, hazard मतलब money और risk, तुम जो रिसेंट मनी मेरे को दोगे वो तो हम डेफिनेटली लौटा देंगे. अगर हम दोनों पहले का अमाउंट, प्रीवियस अमाउंट और रिसेंट अमाउंट दोनों मिला के नहीं लौटा पाए, तब भी आई एम वेरी श्योर कि रिसेंट मनी, तुम जो रिसेंट रिस्क ले रहे हो, जो रिसेंट मनी तुम दे रहे हो, सेकेंड अमाउंट तुम जो पे कर रहे हो, लैटर मतलब सेकेंड, लैटर मतलब रिसेंट, तुम जो रिसेंट मनी मेरे को दोगे वो तो हम डेफिनेटली लौटा देंगे. आई विल डेफिनेटली ब्रिंग इट बैक अगेन. वाई, हाउ इज ही सो श्योर दैट ही विल डेफिनेटली बी एबल टू ब्रिंग बैक द सेकेंड amount? He says that he would be able to do so because he would be more careful this time. He would be more careful this time, just as he was very careful when he shot the second arrow. Similarly, I would be utilizing this money with great care and thankfully rest debtor for the first. और अगर हम दोनों अमाउंट नहीं लौटा पाए तो करंट अमाउंट तो हम डेफिनेटली लौटाएंगे, एंड आई विल रेस्ट डेटर, आई विल कंसिडर माई सेल्फ बाउंड फॉर द फर्स्ट अमाउंट, एंड आई विल बी ऑब्लाइज टू पे द अर्लियर अमाउंट. वो हम डेफिनेटली तुमको बाद में पे कर देंगे. ओके. अंटोनियो सेज यू नो मी वेल एंड हियर इन स्पेंड बट टाइम. तुम मेरे को अच्छे से जानते हो, ठीक है, एंड देयर फोर यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन दिस मतलब बाई टॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे. मतलब तुम रेफरेंस दे रहे हो चाइल्डहुड का, और इतना इनडायरेक्ट वे में जो बात कर रहे हो, बाई टॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर स्पेंडिंग बट टाइम टू वाइंड अबाउट माई लव. वाइंड अबाउट मतलब टॉक इन एन इनडायरेक्ट वे, टॉकिंग विद इनडायरेक्ट रेफरेंसेस. टू वाइंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टांस, तो तुम वाइंड अबाउट माई लव मतलब तुम मेरे प्यार को डाउट से घेर रहे हो, तुम मेरे प्यार को डाउट से घेर रहे हो. सो यू आर वाइंडिंग अबाउट माई लव विद सर्कमस्टांस मतलब यू आर डाउटिंग माई फेथ, यू आर डाउटिंग माई लॉयल्टी. हाउ आर यू डाउटिंग माई लॉयल्टी? सर्कमस्टांस मतलब रेफरेंसेस एंड एग्जाम्पल्स. Wind about matlab talking in an indirect way. So by talking in an indirect way, with indirect references, you are doubting my faith, you are doubting my loyalty. And out of doubt, and certainly you do me now more wrong. You are doing injustice to my loyalty, you are doing injustice to my faith, you are doing injustice by doubting my faith, my intentions. Okay. So you are doing me injustice in making question by doubting of my uttermost matlab, by doubting my willingness. So by talking in an indirect way, you are doubting my willingness to help you, and you are doing me more wrong
दैन इफ़ यू हैड वेस्टेड ऑल माई मनी, अगर तुम मेरा पूरा पैसा बर्बाद कर देते तो मेरे को ख़राब नहीं लगता, बट तुम मेरे से इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हो, तो तुम मेरे दोस्ती पे क्वेश्चन कर रहे हो, ये मेरे को ज़्यादा इनजस्टिस लग रहा है। तो तुम मेरा पूरा पैसा बर्बाद कर देते मेरे को ख़राब नहीं लगता, बट तुम मेरे से इनडायरेक्ट रेफरेंसेस में बात कर रहे हो, ये मेरे को बहुत ज़्यादा इनजस्टिस और ख़राब लग रहा है। सो इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटर मोस्ट, तो इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हो तो यू आर डाउटिंग माई विलिंगनेस टू हेल्प यू। दैन इफ यू हैड वेस्टेड ऑल आई हैव, इफ यू हैड वेस्टेड ऑल माई वेल्थ, इट वुड नॉट, आई वुड नॉट हैव माइंड इट मच, बट बाई टॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे यू आर डाउटिंग माई फेथ, यू आर डाउटिंग माई लॉयल्टी। Then do but say to me what I should do. Just say as a friend what you want from me. That in your knowledge may by me be done. That you know I am capable of. वो बताओ हम क्या कर सकते हैं. And I am pressed unto it. I am bound because of friendship. I am your friend and I am bound to satisfy the desires of my friend. So therefore speak. So now Bassanio starts to tell his intentions. In Belmont is a lady richly left. Richly left मतलब inherited a big fortune. उसके फादर का डेथ हो गया और उसके फादर बहुत संपत्ति छोड़ के गए हैं. In Belmont there is a lady richly left. In Belmont there is a lady who had inherited a big fortune. जिसके पास बहुत wealth आया है. Inherit मतलब फादर से मिलना. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. सो यहाँ पे हो गया डिस्क्राइब पोर्शिया. तो पोर्शिया का फर्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या हो गया, इज शी हैज़ इनहेरिटेड अ बिग फॉर्च्यून एंड शी इज़ फेयर, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, शी इज़ फेयरर दैन द वर्ड. फेयरर दैन द वर्ड मतलब द वर्ड कैन नॉट डिस्क्राइब हर, द वर्ड फेयर कैन नॉट डिस्क्राइब हर, शी हर ब्यूटी इज़ बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, शी इज़ टू ब्यूटिफुल टू बी डिस्क्राइब्ड. Of wondrous virtues, of rare qualities, of wonderful qualities. Point number 3. So point number 1, richly left. Point number 2, she is very beautiful. Point number 3, she has rare virtues. Sometimes from her eyes, sometimes long time back in the past, I had been to Belmont, and in that past meeting, I noticed in her eyes expressions of love for me. In the past meeting, I did receive fair speechless messages. Fair speechless messages means unspoken messages of love. इसका मतलब she looked at me lovingly and adorably when I was last in Belmont. जब हम बेलमंट गए थे तो बाद में रेफरेंस आएगा किसके साथ गया था, मार्क्विस ऑफ मॉन्टफेरेट के साथ गया था, तो ये बाद में आएगा, अभी रेफरेंस नहीं है. तो जब हम बेलमंट गए थे तो आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेज मतलब अनस्पोकन मैसेजेस ऑफ लव बिकॉज शी लुक्ड एट मी लविंगली एंड अडोरेबली, बहुत प्यार से देखी थी मेरे को. हर नेम इज़ पोर्शिया एंड शी इज़ नथिंग अंडर वैल्यूड. तो देखो नथिंग नेगेटिव है, अंडर वैल्यूड अननेगेटिव है. नथिंग और अंडर वैल्यूड दोनों कट जाएगा, मतलब टू वैल्यूड मतलब इन नो वे इन्फीरियर. शी इज़ इन नो वे इन्फीरियर टू कैटोस डॉटर एंड ब्रूटस पोर्शिया. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना. पोर्शिया एंशियंट रोमन हिस्ट्री में भी मेंशन्ड है. पोर्शिया कैटो नाम का एक बहुत वर्दी रोमन सिटीजन था और ब्रूटस नाम का एक बहुत नामी रोमन जनरल था. पोर्शिया ब्रूटस की वाइफ थी, रिनाउंड रोमन जनरल ब्रूटस की वाइफ थी. ब्रूटस जो जूलियस सीजर को मर्डर किया था, तो ब्रूटस वॉज अ वेरी पॉपुलर रोमन जनरल. पोर्शिया उसकी वाइफ थी और उसके फादर का नाम कैटो था. कैटो भी बहुत रिनाउंड रोमन सिटीजन था और पोर्शिया खुद में बहुत रिनाउंड थी. तो शी वॉज एन एंशियंट एंड रिनाउंड पोर्शिया ऑफ रोम. सो ही कंपेयर्स द पोर्शिया ऑफ बेलमंट to the ancient and renowned Portia of Rome, and he says that this Portia is in no way inferior to the historical Portia of Rome, to the ancient and renowned Portia of Rome. ये रोमन जनरल ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया के जितनी ही वर्दी है, जितना वर्दी वो रोमन पोर्शिया थी उतनी ही वर्दी ये बेलमंट की पोर्शिया है. तो हर नेम इज पोर्शिया एंड इज शी इन नो वे अंडर वैल्यूड, शी इज इन नो वे इन्फीरियर टू द ग्रेट हिस्टोरिकल पोर्शिया हु वॉज कैटोस डॉटर एंड ब्रूटस वाइफ. सो फोर्थ पॉइंट हो गया. तो पहला पॉइंट क्या था कि रिचली लेफ्ट इनहेरिटेड अ बिग फॉर्च्यून. दूसरा पॉइंट क्या था, शी इज़ फेयर एंड टू फेयर टू बी डिस्क्राइब्ड. तीसरा पॉइंट क्या था, रेयर क्वालिटीज. चौथा पॉइंट क्या था, शी इज़ एज वर्दी एज द हिस्टोरिकल पोर्शिया ऑफ रोम. And point number 5,
नॉर इज द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ अवर वर्थ, तो नॉर नेगेटिव है, इग्नोरेंट नेगेटिव है, नॉट इग्नोरेंट मतलब हो गया अवेयर, एवरी वन इज अवेयर, नॉट इग्नोरेंट मतलब एवरी वन इज अवेयर, द होल वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ अवर वर्दीनेस, द होल वर्ल्ड इज अवेयर ऑफ अवर वर्दीनेस, फॉर द फोर विंड्स फ्रॉम द ऑल डायरेक्शंस ब्लो इन मोस्ट ऑफ द, सिंस वो कोस्ट था, सिंस वो कोस्ट था, क्या था, बेलमंट एक आइलैंड था, तो उस आइलैंड में पहुंचने के लिए सारे सूटर्स शिप्स में आते थे दूर दूर से, इसीलिए ब्लो इन, विंड्स ब्लो इन मतलब सूटर्स सारे शिप्स में आते थे, फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट, सो फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस द सूटर्स कम इन, bring suitors from different countries, renowned suitors from different countries, they come to Belmont from all directions, renowned suitors, eminent suitors, and her sunny locks मतलब golden locks of hair, so bunch of hair जो forehead में लटकता है, her golden locks hang on her temples, hang on her forehead, okay, so her okay, and her golden we'll continue from here. The four winds blow in from every coast, renowned suitors. Okay, so from all the directions, renowned suitors come to participate to win her hand in marriage, to marry her. Suitors come from all the directions. For the four winds, for from all the directions, from every coast, from different countries, renowned suitors, eminent suitors, they come, and her sunny locks, her golden locks of hair, hang on her temples, hang on her forehead, like a golden fleece, which makes her compared to the golden fleece, to the golden wool. Okay, the sheep with golden wool. इसका भी रेफरेंस है. In Greek mythology, Jason, a Greek hero, set out on a quest मतलब search, pursuit for the golden fleece. जेसन एक mythological Greek hero था और जेसन किस सर्च में निकला, एक शीप थी जिसका गोल्डन फर था, जिसका गोल्डन वुल था, उसके खोज में वो निकल पड़ा. कौन निकल पड़ा, जेसन निकल पड़ा. और उसको ये गोल्डन शीप कहाँ पे मिली, ये शीप कहाँ मिली विद द गोल्डन फ्लीस विद द गोल्डन वुल, उसको मिली कोलकोस आइलैंड में. उसको कहाँ मिली, कोलकोस आइलैंड में. कोलकोस आइलैंड पे क्या मिला, कोलकोस आइलैंड में शीप मिली विद द गोल्डन फ्लीस. कौन सर्च में गया था, जेसन, अ ग्रीक लेजेंड, अ ग्रीक हीरो, अ हीरो इन ग्रीक मिथोलॉजी. ही सेट आउट ऑन इन द सर्च ऑफ गोल्डन फ्लीस, एंड वेयर डिड ही फाइंड द गोल्डन फ्लीस, ही फाउंड इट इन द कोलकस आइलैंड, which makes her seat of Belmont. So her golden hair makes her residence of Belmont compared to the coast of Colchos, which makes her seat of Belmont, which makes her residence of Belmont, Colchos Strand, मतलब compared to the coast of Colchos, where Jason, the great legendary hero, the great Greek hero, reached in search of the golden fleece. So this is how she is compared to the golden fleece. एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, एंड मैनी जेसन्स, यहाँ पे जेसन मतलब सूटर्स हो गया, मैनी सूटर्स, रिनाउंड सूटर्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, कम इन परस्यूट ऑफ हर, कम इन सर्च ऑफ हर. ओ माई अंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स, ओ अंटोनियो, इफ आई हैड द रिसोर्सेज टू होल्ड अ राइवल प्लेस, to present myself as a rival suitor, to present myself as a rival among the aristocratic and princely suitors. अब मेरे पास तो पैसा नहीं है, और अगर हम पोर्शिया से शादी करने जाए तो हमको एरिस्टोक्रेटिक एंड प्रिंसली प्रेजेंटेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना. इन प्रिंसली सूटर्स और के बीच में हम भिखारी बन के तो जा नहीं सकते, तो हमको कैसे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो विथ पॉम्प एंड शो, आई हैव टू गो विथ पॉम्प एंड शो. सो व्हाट डज ही वांट टू डू, व्हाई डज ही वांट द मनी, ही वांट्स द मनी to hold a rival place among the aristocratic and princely suitors. Aristocratic मतलब रईस. So he wants the money to hold a rival place. Rival place मतलब competitive place with one of them, मतलब among the princely suitors. So he wants to present himself as a rival among the aristocratic and princely suitors. ठीक है. I have a mind presages, I have foretellings, good foretellings. Foretellings मतलब लग रहा है कि कुछ होने वाला है. For पहले से, tell, तो मेरा दिमाग मेरे को बता रहा है. I have mind presages, I have predictions, I have foretellings. My mind tells me such thrift that I would definitely be thriftful, I would definitely be successful. That I should questionless be fortunate, that I should definitely, undoubtedly be fortunate. I would become successful, I would become a successful suitor, and I would win Portia's hand in marriage. Antonio says,
you knowest that all my fortunes are at sea. So you know that all my wealth is invested in the cargoes. Cargo मतलब goods and my ships. तो अंटोनियो बोलता है मेरे पास अभी पैसा नहीं है क्योंकि मेरा सारा वेल्थ मेरे कार्गो और मेरे शिप्स में इन्वेस्टेड है. नाइदर हैव आई मनी नॉर कमोडिटी. कमोडिटी मतलब गुड्स. अगर मान लो इसके पास कुछ सामान पड़ा होता तो उस सामान को गिरवी रख के ये पैसा उठा सकता था या उस सामान को वो बेच के पैसा उठा सकता था. तो ना मेरे पास मर्केंडाइज है ना मेरे पास पैसा है टू रेज द प्रेजेंट सम, टू रेज द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ मनी. ओके, सो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जब सेलेरियो सलानियो बोला था कि यू आर वरीड अबाउट योर बिजनेस, तो ये क्या बोला था? ये 3 पॉइंट्स बोला था क्या? आई एम नॉट वरीड अबाउट माई बिजनेस बिकॉज आई हैव नॉट इन्वेस्टेड माई एंटायर अमाउंट इन वन शिप, ऑल माई शिप्स आर नॉट वॉयजिंग टू द सेम प्लेस, एंड लास्ट ये बोला था कि माई फाइनेंशियल पोजिशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रिटर्न्स ऑफ द प्रेजेंट ईयर. पर यहाँ पे तो बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है. तो वो जब वो थर्ड पॉइंट बोला था कि माई फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिटर्न्स ऑफ द प्रेजेंट ईयर, तो इसका मतलब तो यही था कि उसके पास इतना वेल्थ है कि अगर प्रेजेंट बिजनेस डूब भी जाए तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता. पर पता चलता है कि अंटोनियो झूठ बोला था, क्योंकि अब तो ये बसानियों को बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा पूरा पैसा मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड है. तो क्या ये सेलेरियो सोलानियो को झूठ बोला? ये सेलेरियो सोलानियो को एग्जैक्टली झूठ नहीं बोला, बट ये इतना ईगर था बसानियो के सीक्रेट को जानने के लिए. ये बसानियो का इतना अच्छा फ्रेंड है कि जब तक बसानियो इसको अपना सीक्रेट नहीं बता दे ये एंग्जाइटी में रहेगा, ये चिंता में रहेगा. अब हमको ही कोई मेरा क्लोज फ्रेंड बोला कि आके हम कुछ सीक्रेट बात बताने वाले हैं, पर उस बीच में क्या हो गया, कोई दूसरे फ्रेंड्स आ गए, तो उनको हम टालने का कोशिश करेंगे. क्या कोशिश करेंगे? उनको टालने का कोशिश करेंगे. तो कैसे टालने का कोशिश करेंगे? वो जो भी बोलेंगे हम बोलेंगे हाँ हाँ ना 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 करके शॉर्ट रिप्लाईज देके उनको हम टालने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोग चले जाए और फिर मेरा फ्रेंड जो बहुत क्लोज फ्रेंड है वो आके अपना सीक्रेट शेयर कर सके. तो इसीलिए ही एग्जैक्टली डिड नॉट टेल लाइज टू देम. He just wanted to be left alone because his friend Bassanio was coming. So he was trying to avoid them. He was trying to make them go away soon because his mind was preoccupied with what his friend Bassanio was about to say. Okay. Therefore, go forth, go out in the city and see who is ready to lend money to me. Try what my credit can in Venice do. Go and see what my financial reputation in Venice can help you. How my financial reputation in Venice can help you. That shall be racked, that shall be stretched, and if somebody is ready to lend me money because of my financial reputation, I shall stretch it to the uttermost, to the maximum limit. That is, take as much money as you want. To furnish you to Belmont, to help you, equip you. Furnish matlab equip you, prepare you to go to Belmont, to fair Portia. Go presently inquire, go and immediately inquire, and so will I. So I will also inquire where money is. So who is willing to give money? And I no question, matlab I will undoubtedly make to have it of my trust. I will take it on my trust. On my trust matlab kya? I will take it on my guarantee. I will take it on my guarantee or for my sake. So I will take it in my name. अब पैसा मान लो कि हम तुमसे बोले हैं कि जाओ तुम प्रभात सर से 10,000 रुपया ले लो, और प्रभात सर पूछेंगे कि भाई 10,000 हम तुमको क्यों दें, मतलब तुमको क्यों दें, तो तुम बोलोगे विकी भैया के नाम पे दीजिए. प्रभात सर मेरे को फ़ोन करेंगे, हम बोलेंगे हाँ आप इसको 10,000 रुपये दे दीजिए, मेरा गारंटी है. तो प्रभात सर को तुमको पैसा दिए, बट उनको मतलब मेरे से है, वो पैसा दिए मेरे फाइनेंशियल रेपुटेशन पे. तो फॉर माई सेक मतलब क्या? एट माई रिस्क. सो आई टेक द मनी एट माई रिस्क, एट माई गारंटी. I will be the guarantor. So have it of my trust or for my sake. Exit. So Act 1, Scene 1 finally completed. I hope you have understood every word. थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, just give me a call. ठीक है? और ये पार्ट बाय पार्ट वीडियोज़ है, इसको अच्छे से देखो और बुक से ढंग से पढ़ो. Act 1, Scene 1 पूरा प्रिपेयर कर लो अच्छे से, और जब तक Act 1, Scene 1 इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि फिर दोबारा तुमको उतना मेहनत से नहीं पढ़ना पड़े. वर्ड टू वर्ड अभी समझ लो. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन.